Good morning, everyone. Boolean Algebra. And what is Boolean Algebra? A Boolean Algebra is an algebraic structure which consists of set X having where X is not null set. It must be some non-empty set. Then it has two binary operations denoted by join and AND. V is known as join, and opposite of V or reverse of V is known as meet, and one unary operation denoted by dash, and there will be two special elements 0 and 1. 0 indicates false, 1 indicates true, which satisfy the following 5 laws for all x, y, z belongs to x. So a Boolean algebra is nothing but a algebraic structure that consists a non-empty set X with these operations and elements. There are two types of operation, two binary operations, join and meet, one unary operation, complement, and two special elements 0 and 1. 0 indicates false and 1 indicates true, which satisfy the following 5 laws. And what are that laws? That laws are shown here. First law is denoted by B1, or you can simply say associative laws, and this associative laws gives you select or to put parenthesis after first term or before last term. It means you can change the parenthesis order. So X join small bracket Y join Z, or you can also write small bracket X join Y join Z. Same concept can be used on meet also. X meet small bracket Y meet Z is equal to small bracket X meet Y and meet Z. It means you can use parenthesis or associative laws on join and meet both. Similarly, second law is called commutative laws. As you know, you can change the order of variable. X join Y is equal to Y join X. Similarly, X meet Y equal to Y meet X. Again, we can use distributive laws. That is, you can distribute join over meet. In this case, I can distribute join on meet, and this can be written as X join Y meet X join Z. Similarly, in second part, you can distribute meet over join. In this case, X meet Y join X meet Z. Both are similar or both are equal. And fourth law is called identity laws. In identity laws, when we join X with false or 0, we get X. You can draw truth table for its truthness. Similarly, if we meet X meet with 1 or true, then you will get X. So these two are also true for 0 and 1. So the above algebraic structure is written as B equal to X join meet complement false and true, or simply we can write it capital B. The two binary operations join and meet are called join operation and meet operation, as I have already told you in previous slide. Respective, the unary operation dash is called complementation. There are two types of operation, two binary operations and one unary operation. Binary operations are known as join and meet. Join is represented by V, and the opposite of V is known as meet. And one unary operation is called, that is denoted by dash, is known as complementation. From above, we would say that the set S, if we replace X with S, where S is known as a proposition set, it is a proposition set, is a Boolean algebra where T and F used as I and 1 and 0 respectively. If we replace
this 0 with false and this 1 with true and x with s, where x is a set of propositions. Then it is called propositional Boolean algebra. This one is known as a simple Boolean algebra, but this set of S is known as a propositional Boolean algebra. To get propositional Boolean algebra, we replace 0 with false, 1 with true, and x with s, where s is a set of propositions. Then it is known as a propositional Boolean algebra. Application of Boolean algebra. Basically, Boolean algebra is based on switching circuits. Wherever you want switching, you have to use Boolean algebra. जहाँ भी switching circuit की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे Boolean algebra का requirement. For example, in computer architecture, to represent the different gates like and, or, not, etc. Similarly, you can use it in computer network. There are a different field where we can apply Boolean algebra, and that fields are electric circuit, second electronic circuit, third logic circuit in computer architecture, etc. A Boolean variable, any Boolean variable have only two values, either 1 or 0. 1 is known as a true and 0 is known as a false. I think it is clear to you. Boolean variable क्या है? ऐसा कोई भी variable जिसके सिर्फ और सिर्फ दो values हो, 1 और 0, where 1 is known as a true and 0 is known as a false. That type of variable is called Boolean variable. If B equal to S, join, meet, and this complementation is also denoted by this not, and false or 0 and true, that is also represented as I, is a Boolean algebra, then the following laws hold for x, xy, where xy belongs to s. s हमारा कोई नॉन एम्पटी सेट है जिसके दो वेरिएबल्स हैं x एंड y. तो इस x y पर कौन कौन से बुलियन अलजेब्रा होंगे? Obviously this Boolean algebra is a propositional Boolean algebra. Why? Because I have already said you that S is denoted as a propositional Boolean algebra. If we write it like this, in which x y is variable of S, then there will be some laws like this idempotent laws. In this laws, x join x gives you x and x meet x gives you x. This law can be used to simplify a Boolean expression. जब भी आप कोई बड़े बड़े बुलियन एक्सप्रेशन यूज करते हो तो वहां पे इस तरह के यदि कंसेप्ट आ जाए तो इसकी जगह पे सिंपली आप x लिख दो, करेक्ट होगा. आप वैसे भी इसका ट्रूथ टेबल निकालिए या ऊपर जो भी हम लॉज बताए, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और अदर लॉज, आप उस लॉज का ट्रूथ टेबल निकाल लीजिए. लेफ्ट साइड का ट्रूथ वैल्यू और राइट साइड का ट्रूथ वैल्यू सेम होगा. उसी तरह से यहाँ भी x मीट x x होगा. सेकेंड लॉ है एब्जॉर्प्शन लॉज. इस एब्जॉर्प्शन लॉज में आपके इस तीन टर्म के बदले में डायरेक्ट हम केवल x लिख. इसी तरह से इस दूसरे वाले रूल में आपके इसकी जगह पे x लिख सकते हो. और थर्ड लॉ है इन्वोल्यूशन लॉज, जिसमें हम डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लेते हैं. x कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x. आप दोनों का ट्रूथ टेबल निकालिए, सेम वैल्यूज मिलेगा. देन लास्ट लॉज है जिसको कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉज. पहले से भी पढ़ते आ रहे हो. यदि x ज्वाइन y का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से आपके ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं सब पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएंगे. और यदि ज्वाइन होगा तो वो मीट में कन्वर्ट कर जाएगा और मीट होगा तो ज्वाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर ये हमारा एक फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. जब भी आपको उसे चेंज करना हो, कॉम्प्लीमेंट को तोड़ना हो,
तो आप डिमॉर्गन्स लॉज को यूज कर सकते हैं। यदि किसी ब्रैकेट के अंदर किसी ब्रैकेट पर कंप्लीमेंट लगा हुआ है और उसके अंदर वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, ज्वाइन और मीट है, तो ईच वेरिएबल पर कंप्लीमेंट लग जाएगा और ज्वाइन का मीट और मीट का ज्वाइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे x ज्वाइन y मीट है तो हम लिखेंगे x मीट एंड y मीट। इसी तरह से x मीट y का कंप्लीमेंट है तो आप लिख सकते हो x कंप्लीमेंट ज्वाइन y कंप्लीमेंट। तो ये हमारा 4 डिफरेंट लॉज हैं जो हम इस बुलियन अलजेब्रा पर, प्रोपोजिशनल बुलियन अलजेब्रा पर अप्लाई करेंगे और उसको यूज करेंगे। तो ये सारी लॉज हमारे काम आते हैं जब आप कहीं पर बड़े एक्सप्रेशंस को स्मॉल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो दैट आपकी सर्किट सिंपल बन सके। वैसे सिंपल बनाने के लिए आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कार्नोफ मैप और मैकक्वीन मेथड्स प्लस बुलियन अलजेब्रा, ये 3 मेथड को यूज करते हैं हम अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब आप बुलियन अलजेब्रा यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग और एआई में, तो वहां पे अपने बड़े एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब लॉज चाहिए। तो एक टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जिसको कहते हैं ड्यूअल। अब ड्यूअल है क्या? इफ P इज ए प्रोपोजिशन इन्वॉल्विंग नॉट, मीट, ज्वाइन, देन ड्यूअल ऑफ P डिनोटेड बाय P टू द पावर D। तो यदि आपके कोई प्रोपोजिशन है जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, जिसके अंदर नॉट है यानी नेगेशन, मीट और ज्वाइन दिया हुआ है, तो इसका ड्यूअल क्या होगा? ड्यूअल ऑफ P को डिनोट करते हैं P टू द पावर D से। तो P टू द पावर D ऑफ P, इसका ड्यूअल क्या होगा? इसको निकालने का रूल है is the proposition obtained by replacing each statement of meet in P by join। P में जहां भी मीट दिया हुआ है उसको ज्वाइन में कन्वर्ट कर दीजिए एंड ज्वाइन इन P by मीट इन P। यदि आपके किसी प्रोपोजिशन में मीट दिया हुआ है तो मीट को ज्वाइन में कन्वर्ट कर दो, और ज्वाइन दिया हुआ है तो ज्वाइन को मीट में कन्वर्ट कर दो, तो उस P का आपका ड्यूअल निकल जाएगा और इस ड्यूअल को हम PD से डिनोट करेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि x ज्वाइन y लिखा हुआ है कहीं पर, तो इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा? हमने क्या कहा? ये मेरा प्रोपोजिशन है, इस प्रोपोजिशन में ज्वाइन को मीट में कन्वर्ट कर दो, तो x मीट y लिख दीजिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका ड्यूअल हो जाएगा। इसी तरह से x मीट y लिखा हुआ है कहीं पर, x मीट y लिख दे तो इसका ड्यूअल क्या होगा? x ज्वाइन y। आई थिंक बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें, तो ये मेरा क्या हो गया? ड्यूअल ऑफ P कहलाए। इस ड्यूअल ऑफ P का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, द ड्यूअल ऑफ x मीट ज्वाइन y इक्वल टू x। इसका हमको ड्यूअल निकालना है। तो ड्यूअल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमने अभी आपको बताया कि मीट को ज्वाइन में और ज्वाइन को मीट में, तो इस मीट को ज्वाइन में कन्वर्ट कर दीजिए और इस ज्वाइन को मीट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? इसका ड्यूअल मिल जाएगा। तो x मीट ब्रैकेट x ज्वाइन y, इसका ड्यूअल क्या हो गया? x ज्वाइन ब्रैकेट x मीट y इक्वल टू x। बाकी वेरिएबल जैसे है वैसे ही रहेगा, सिर्फ इसमें हम कन्वर्ट क्या करते हैं? इसमें हम कन्वर्ट करते हैं मीट को ज्वाइन में और ज्वाइन को मीट में, जो भी है उसको रिवर्स कर दीजिए। सेकेंड में द ड्यूअल ऑफ x मीट ब्रैकेट x ज्वाइन y का x ज्वाइन y इक्वल टू x का ड्यूअल क्या बन गया? x ज्वाइन ब्रैकेट x मीट y x। हमने मीट को ज्वाइन में और ज्वाइन को मीट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से यदि आपके पास द ड्यूअल ऑफ x ज्वाइन x मीट y इक्वल टू x, इसका ड्यूअल क्या होगा? तो ऑब्वियसली इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा? ज्वाइन को आप किस में कन्वर्ट कर दो? मीट में कन्वर्ट कर दो, और मीट को किस में कन्वर्ट कर दो? ज्वाइन में। वेरिएबल्स जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, केवल यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस को हम
रिप्लेस करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन मेरे दो हैं, मीट एंड ज्वाइन। ज्वाइन को मीट में और मीट को ज्वाइन में कन्वर्ट कर दिए, यू विल गेट द ड्यूअल ऑफ दैट गिवन हियर। दिस वन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। आपका यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन कहलाता है। और एक्सप्रेशन में आपका सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकते हैं, और उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस भी यूज किए जा सकते हैं। तो इस इक्वेशन में आपके दो एक्सप्रेशन हो गए, एक लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन हो गया, दूसरा राइट साइड का एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह से यहाँ भी आपके दो एक्सप्रेशन है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एंड सो ऑन। किसी भी इक्वेशंस में आपके पास क्या हो सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में आपके पास दो और दो से अधिक वेरिएबल्स इम्प्लाइड यूज किए जा सकते हैं, और उसमें दो एक्सप्रेशंस होंगे, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट। बुलियन एक्सप्रेशन, let b equal to s join meet complement false and true be a Boolean algebra, a Boolean expression in variable x1 x2 up to xk। मान लीजिए हमारा कोई बुलियन अलजेब्रा है, तो ये बुलियन अलजेब्रा का नोटेशन हमारा इस तरीके से डिनोट होगा, और इस बुलियन अलजेब्रा में हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल x1 x2 अप टू xk है। के आपका कोई फाइनाइट वेरिएबल्स होंगे, कोई जरूरी नहीं सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हो, तीन वेरिएबल्स हो, आपके फाइनाइट वेरिएबल हो सकते हैं, मल्टीपल्स 9 10 11 कुछ भी हो सकते हैं। ईच टेकिंग देयर वैल्यूज इन द सेट S इज डिफाइंड रिकर्सिवली एज फॉलोज। तो उसके रूल्स क्या हो जाएंगे, इसका रूल्स हो जाएगा कि यदि x1 से xk तक हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो ईच of the variables x1 to xk as well as elements 0 and 1 of the Boolean algebra B are Boolean expression। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपका ये Boolean अलजेब्रा है, अलजेब्रा में आपका ये 0 यानी फॉल्स और 1 ट्रू के साथ साथ जितने वेरिएबल्स हैं, आपके उस बुलियन वेरिएबल में यदि x1 लिखा हुआ है तो x1 खुद अपने आप में बुलियन एक्सप्रेशन है, x5 लिखा हुआ है तो x5 भी अपने में एक बुलियन एक्सप्रेशन है, या x1 x5 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, x1 ज्वाइन x5, तो ये भी मेरा एक बुलियन एक्सप्रेशन होगा। ये मेरा सिंगल वेरिएबल का बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, ये मेरे दो वेरिएबल का एक्सप्रेशन हो गया। यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो x1 ज्वाइन या x1 ज्वाइन i, तो यहाँ पर i खुद एक बुलियन एक्सप्रेशन है, i कहने का मतलब 1, और o जिसको हम फॉल्स कह रहे हैं या 0 कह रहे हैं, तो ये भी यदि कहीं पर लिखा हुआ है तो o यानी फॉल्स खुद अपने आप में एक बुलियन एक्सप्रेशन है, और x2 वगैरह के साथ यदि इसको ज्वाइन करा दीजिए या मीट करा दीजिए तो ये भी आपका एक बुलियन एक्सप्रेशन होगा। ये कहने का मतलब हो गया, यानी ये फर्स्ट लॉ सिर्फ ये बताता है कि आपके उस बुलियन अलजेब्रा में जितने भी वेरिएबल्स यूज किए गए हैं वो सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, बुलियन एक्सप्रेशन होंगे, और साथ ही साथ फॉल्स और ट्रू भी आपके बुलियन एक्सप्रेशन। ये मेरा फर्स्ट लॉ कहता है बुलियन एक्सप्रेशन के लिए। सेकेंड लॉ कहता है कि इफ x1 x2 आर प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल previously defined Boolean expressions, then x1 meet x2। यदि x1 x2 मेरा कोई Boolean expression है, हम मान लिए, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास Boolean expression x1 से लेकर xk तक होगा, तो यदि ऐसा है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x1 और x2 के हेल्प से डिफरेंट ऑपरेशन लगा करके हम डिफरेंट बुलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं। यदि x1 x2 मेरा बुलियन एक्सप्रेशन है तो x1 और x2 के हेल्प से x1 मीट x2 और x1 मीट x2, 2 इधर चला आया है, एंड x1 कॉम्प्लीमेंट और यू कैन से x2 कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये दो रूल्स होंगे। इस दो रूल का फाइनल कंसेप्ट क्या हुआ, हमारे पास यदि कोई बुलियन अलजेब्रा है तो उस बुलियन अलजेब्रा में जो
सेट यूज करते हैं, नॉन एम्पटी सेट एस और बी। बुलियन अलजेब्रा, सिंपल बुलियन अलजेब्रा में बी होगा और प्रोपोजिशनल बुलियन अलजेब्रा में एस होगा। तो यदि आप ये यूज करते हैं तो उस एस के डिफरेंट वेरिएबल हो सकते हैं, 1 2 3 4 फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल। यदि उसमें x1 x2 मेरा 2 वेरिएबल है तो ये दोनों तो बुलियन एक्सप्रेशन है ही इंडिविजुअली, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से x1 मीट x2, x ज्वाइन x2 और ईच का कॉम्प्लीमेंट, x1 का कॉम्प्लीमेंट हो या x2 का कॉम्प्लीमेंट हो, ये सारे भी बुलियन एक्सप्रेशन।